Good morning, students. I hope you all are fine and are paying attention to your studies at home. So, in the previous video of prepositions, we have already discussed the first type of preposition, that is prepositions of time. Okay, we all know that there are three types of preposition, that is prepositions of time, prepositions of place, and the last one, prepositions of direction and movement. So, we had already discussed the first type, that is prepositions of time. Today we are going to discuss prepositions of place. So let's start. Prepositions of place. Prepositions that give us information about the place, location, or position of a noun or a pronoun in relation to something else are called prepositions of place. So prepositions of place उन शब्दों को बोलते हैं जो हमें किसी प्लेस, किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो भी सेंटेंस में यूज़ हुआ है उस नाउन या प्रोनाउन का लोकेशन बताने के लिए जो यूज़ होता है, उस नाउन प्रोनाउन का प्लेस, पोजीशन बताने के लिए जो प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं उनको हम प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस बोलते हैं. अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल, लुक हियर, आई शैल मीट यू एट करोल बाग. ओके, आई जो यहाँ पे नाउन यूज़ हुआ है वो किस प्लेस में मीट करने वाला है दूसरे पर्सन को? करोल बाग. तो इस आई का, इस नाउन का लोकेशन क्या है? करोल बाग. और ये बताने के लिए हमने किस वर्ड का यूज़ किया? इस रिलेशन को, नाउन का अपने लोकेशन से रिलेशन बताने के लिए हमने जिस प्रोनाउन का यूज़ किया है वो कौन सा है? एट. ओके, सो prepositions of place tell us about the location or position of the noun or pronoun in relation to other words in the sentence. सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ हुए हैं उनका बाकी के शब्दों के साथ रिलेशन बताने के लिए और उस नाउन और प्रोनाउन का वो पोजीशन या लोकेशन बताने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं prepositions of place. Now, there are several prepositions of place like in, at, on, beside, near, behind, beyond, about, over, below, under, between, etc. Now you must be wondering कि हमने at, in, on ये सब तो पिछले वाले prepositions में भी पढ़ा, that is in prepositions of time also you have read that. Then why is it being used in preposition of place again? So listen me very carefully. At, in, on ये prepositions of time भी है और prepositions of place भी है. Now how will you understand when it is being used as a preposition of place and when it is being used as a prepositions of time? So listen to me. If I say I woke up at 6 o'clock, यहाँ पे जो at यूज़ हुआ है वो टाइम बताने के लिए, at 6 o'clock टाइम बताने के लिए यूज़ हो रहा है. That's why it will be preposition of time. But when I say I shall meet you at करोल बाग, यहाँ पे कोई टाइम नहीं बता रहा at, यहाँ पे ये place बता रहा है. करोल बाग is a place. Understood? So when at is being used to denote place, when it is being used to show about the location of the noun pronoun, then it will be called as preposition of place. And when it is being used to show time, then it will be known as preposition of time. Similarly, it is with in and on. When they are being used to show time, it will be preposition of time. When they are being used to show position or location, it will be preposition of place. Now, in and at, क्या दोनों का यूज़ है? कैसे दोनों को हम यूज़ करेंगे? लेट्स सी दैट. एट हैज़ द आइडिया ऑफ अ पॉइंट. इट इज़ यूज विद विलेजेस और स्मॉल टाउन्स. सो एट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्लेस को दिखाने के लिए यूज़ होता है. बड़े से सिटी को या बड़े से शहर को दिखाने के लिए हम एट का यूज़ नहीं कर सकते. लाइक आई एम एट सरोजनी नगर. वी कांट से आई एम एट दिल्ली. वी ऑलवेज से इन दिल्ली. सो जब हमें बड़े शहर को या बड़े कंट्री को दिखाना है, देन वी विल ऑलवेज यूज इन. एंड व्हेन वी हैव टू शो अ पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन वी हैव टू शो अ पॉइंट ऑफ प्लेस, ओके, पर्टिकुलर छोटे से जगह को दिखाना है, पार्ट ऑफ अ सिटी को दिखाना है, तब हम एट का यूज़ करेंगे. लाइक एट सरोजनी नगर. सरोजनी नगर इज़ अ पार्ट ऑफ दिल्ली, नॉट दिल्ली. ओके. एंड इन मुंबई. मुंबई इज़ द कंप्लीट सिटी, बिग सिटी. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इन. And when we have to show only a part of the place, then we will use at. So that's it. At or in ka use, I hope you all have understood. Now let's move on to between and among. Between is used with two persons or things. Between जब हमें दो लोगों या दो चीज़ों के बीच बताना होता है तो हम between का यूज़ करते हैं. But when we have to use जब दो से अधिक या फिर many नंबर ऑफ पीपल के लिए कुछ उनके बीच में कुछ होने का दिखाना होता है, देन वी यूज अमंग. अंडरस्टूड? सो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दैट बिटवीन इज यूज फॉर टू पीपल और थिंग, एंड फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग वी यूज अमंग. अंडरस्टूड?
आई सैट बिटवीन अरुण एंड अरुणिमा. अरुण एंड अरुणिमा, यहाँ पे सिर्फ दो लोगों के बीच की बात हो रही है, सो वी विल यूज बिटवीन. आई एन्जॉय बींग अमंग माई फ्रेंड्स. अमंग माई फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज नॉट मैंशन, सो विल ऑलवेज यूज अमंग. जब क्लियरली मैंशन हो कि सिर्फ दो लोगों के बीच बात हो रही है तो ही हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम अमंग का यूज़ करेंगे. नाउ ऑन, अपॉन. नाउ व्हेन वी विल यूज ऑन एंड अपॉन, लेट्स सी दैट बोथ ऑन एंड अपॉन कैन बी यूज वाइल स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट. जब कोई चीज़ रेस्ट पे है, जब किसी चीज़ में मूवमेंट नहीं हो रही है, तब हम ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं और अपॉन का भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों का मतलब होता है ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर दिखाना. अंडरस्टूड. बट अपॉन इज यूज विथ थिंग्स इन मोशन. बट कोई चीज़ अगर मोशन में है, किसी भी चीज़ में अगर मूवमेंट हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ हम अपॉन का यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ नहीं करेंगे. लाइक द बुक इज ऑन द टेबल, अपॉन द टेबल, दोनों यूज हो सकता है क्योंकि बुक यहाँ रेस्ट पे है, मूवमेंट नहीं हो रहा है बुक में. बट नाउ हियर यू सी द कैट स्प्रैंग अपॉन द सोफा. कैट ने सोफा के ऊपर जंप किया, कैट ने मूवमेंट दिखाया, दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज यूज अपॉन हियर. आई होप इट्स क्लियर. नाउ अबव एंड ओवर. बोथ अबव एंड ओवर मीन हायर देन. दोनों का मतलब होता है हायर देन. समटाइम्स वी कैन यूज आइदर ऑफ देम, और हम कभी कभी दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. अंडरस्टूड. द फ्लैग्स वेव्ड ओवर आवर हेड, द फ्लैग्स वेव्ड अबव आवर हेड, दोनों सही है. किसी चीज़ से ऊंचा दिखाना, उसके लिए हम अबव और ओवर दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हेन विल बी ओनली ओवर यूज, कब हम सिर्फ ओवर का यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी. ओवर कैन ऑल्सो मीन कवरिंग. ओके, किसी चीज़ को जब कवर करने के लिए कुछ चीज़ प्रीपोजिशन का यूज़ करना है तो हम हमेशा ओवर का यूज़ करेंगे. लाइक देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर. रिवर को कवर करने के लिए ब्रिज है. ओके, ब्रिज रिवर के ऊपर होता है तो रिवर को कवर करता है कुछ दूर के लिए ब्रिज. तो उस सेंस में जब हमको ओवर या अबव में से चूज करना है तो हम हमेशा ओवर का यूज़ करेंगे. जब कवरिंग की बात आती है, किसी चीज़ को कवर करने की बात आती है, तो हम हमेशा ओवर का यूज़ करेंगे. नाउ बिलो एंड अंडर. बोथ बिलो एंड अंडर मीन लोअर देन. दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ से नीचा होना. समटाइम्स वी कैन यूज आइदर ऑफ देम, कभी कभी हम दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं. बट अंडर ऑल्सो मीन्स वर्टिकली बिलो. अंडर ऑल्सो हैज द आइडिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, जब लोअर देन दिखाना है हमको तो हम बिलो और अंडर दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं. बट जब हमको किसी चीज़ से कॉन्टैक्ट दिखाना है, अगर एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कॉन्टैक्ट दिखाना है, अंडरस्टूड, रिलेशन दिखाना है, तो हमेशा बिलो का यूज़ करेंगे. लाइक लेट्स सी हियर, सॉरी, तब हम हमेशा अंडर का यूज़ करेंगे. अगर हमें किसी चीज़ से कॉन्टैक्ट दिखाना है, जुड़ाव दिखाना है, तो हम हमेशा अंडर का यूज़ करेंगे. फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्काई स्क्रेपर द कार्स ऑन द रोड बिलो लुक्ड लाइक मिनी टॉय कार्ड्स. नीचे रोड पे, विंडो से तो नीचे ही होगा रोड. ओके, तो रोड पे यहाँ बिलो यूज हुआ है, पर आप यहाँ पे अंडर भी यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड. द टायर्ड ट्रैवलर टुक शेल्टर अंडर अ ट्री. द टायर्ड ट्रैवलर टुक शेल्टर बिलो अ ट्री. दोनों सही है यहाँ पे. अंडरस्टूड. यहाँ पे बिलो भी यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे अंडर भी यूज कर सकते हो. नाउ बिलो इज यूज इन मेजरमेंट्स. जब हमें मेजरमेंट्स दिखाना होता है, जैसे इफ़ आई हैव टू से उसका हाइट 6 फीट से नीचे होगा, तो मैं क्या बोलूँगी, हिज हाइट इज़ बिलो 6 फीट. मेजरमेंट्स में जब नीचा दिखाना होता है, किसी चीज़ से किसी चीज़ को कम दिखाना होता है, छोटा दिखाना होता है, तो हम हमेशा बिलो का ही यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड. लाइक द टेम्परेचर वॉज 3 डिग्रीज बिलो नॉर्मल. नॉर्मल से 3 डिग्री कम था. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ बिलो एंड अंडर ऑल्सो. So that's all for today. In the next video, we will be discussing prepositions of direction and movement. I hope you all have understood this. Thank you.